income from other sources, this is your residuary head of income. Residuary head of income इस जो कहीं भी इनकम फिट नहीं होता है ना, वो ये हेड में आ जाता है. कहीं भी फिट नहीं होता है, इट फॉल्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. एंड अनदर गुड थिंग अबाउट दिस इज योर लास्ट हेड ऑफ इनकम. दो ही सेक्शंस इसके अंदर 56 एंड 57. 56 टेल्स यू इट इज द चार्जिंग सेक्शन. Anything that any income which doesn't fall under the four heads will fall under the income from other sources. And the other thing is any expenses in relation to this income you can take as a deduction. For example, अगर तुमने machinery, plant and machinery rent किया है, so I am a lawyer and I have some machinery, okay, और I have a car, वो मैं रेंट पे दे देती हूँ, ऊबर के लिए दे देती हूँ. अब वो ऊबर मुझे चला के पैसे देता है. In that case, the money that I get in is income from other sources. But to maintain the car, I have to pay petrol, I have to incur depreciation. All that I can take, insurance, I can take as an expense under 57. The net amount will be taxed under section 56. Okay. So now, there are various incomes, or as it is a residuary head, it is very wide, inclusive definition. Everything will fall over here. ओके. अब इसके अंदर एक चीज याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन इज योर डिविडेंड इनकम. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी बाय अ शेयर होल्डर इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. किसको? द शेयर होल्डर नीड नॉट पे एनी टैक्स बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. नाउ दिस अमाउंट इज एग्जेम्प्ट अग्रीड. बट अगर तुमको लाखों रुपया डिविडेंड आ रहा है, सॉरी मैम, नाउ लेट्स टेक डिविडेंड. डिविडेंड इनकम दैट इज अर्न्ड बाय अ शेयर होल्डर इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. मुझे अगर कोई कंपनी डिविडेंड इनकम दे रही है, that income that I receive is not taxed in my hands. However, if I receive huge amount of dividend, that is dividend income above 10 lakh rupees in a year, is taxable in my hands at the rate of 10%. Okay. So agar dividend income that I have received about 10 lakhs in the previous year, about 10 lakhs in the previous year, then it will not be taxed. So dividend income in the hands of the shareholder, if the shareholder is earning more than 10 lakhs, is taxed at the rate of 10% only. Okay. Now let's take a situation if a shareholder is not earning 10 lakhs का dividend. अब हम जैसे लोग 10 लाख तो dividend कमाते नहीं है साल भर का. अब हमारे जैसे लोगों के लिए डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है. 1 रुपये पे हमको टैक्स नहीं भरना है. वाई? बिकॉज द कंपनी इज सपोज टू पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एज अ डिविडेंड. So company pays DDT. Company pays DDT at the rate of 15%. Okay, plus surcharge plus cess. So under which section? Under section 1150, the company is paying dividend distribution tax. Okay, इसके अलावा उसमें surcharge cess सब लगता है. Plus surcharge plus cess. Okay, वो देखेंगे क्या है. But for now 15% उसको DDT पे करना पड़ता है on dividend. Now when I say dividend, you understand it is nothing but distribution of profits. इसके अलावा they have gone further and said that listen, dividend पे तो हम DDT कंपनी पे करती है. जो अलग incomes है which for in your hands you might not think it is dividend, but these 5 in particular under section 222 is a dividend. One is any distribution of profits. Any distribution of profits is nothing but a dividend income. चाहे तुम कोई भी नाम से बोलो, गिफ्ट बोल के दे दो शेयर होल्डर्स को, तो भी वो डिविडेंड इनकम है. एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इज नथिंग बट डिविडेंड इनकम. नाउ distribution of debentures, deposit certificates to shareholders or bonus to preference shareholders is also they are saying is a dividend. Isn't it strange? They are saying debentures तुम दे रहे हो, वो क्या है? डिविडेंड है. Now understand this. Why? What is the logic? Beautiful it is. Now if I am a company, if
I have to give you dividend, I have to pay DDT at 15% plus surcharge plus cess, तो वो 23% का टैक्स आ जाता है इन इफेक्ट. तो मैंने अगर 100 लाख कमाया ओके कंपनी में और तुम शेयर होल्डर हो, now you want to enjoy the money, so I have to give you the money. When I give you the money, I have to pay 23% tax. So what I do, I say forget all this, I'll devise a mechanism. I'll give you a debenture certificate. डिबेंचर फ्री में दे दिया ओके, या तुमको प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए. अब तुमको जैसे प्रेफरेंस शेयर्स दिए, तुम एक साल बाद क्या आ जाते हो, यू बिकम अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यू बिकम अ डिबेंचर होल्डर, यू बिकम अ डिपॉजिट सर्टिफिकेट होल्डर. यू कम आफ्टर 1 year or 6 months, वॉट एवर इज द टर्म, एंड यू से देखो मेरे पास डिबेंचर है, रिडीम द डिबेंचर्स. So when I have to redeem the debentures, what I will do, redeem the preference shares, redeem the deposits, I will remove and give you the profits. So I will not call it dividend, I'll call it redemption. They are saying, boss, ये जो उसको तुमने डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया, ये भी तो तुमने क्या किया, बोनस के टाइम पे ही दिया ना. यू डिड नॉट, दिस इज नॉट अ रियल डिबेंचर होल्डर. You gave them free debentures, free deposit certificates, free preference shares. This case, when you redeem it, okay, as soon as you distribute the debentures, they become your dividend and you have to pay DDT on it. DDT on it. Okay, मतलब मैं preference share दे रही हूँ लेकिन मुझे DDT भरना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन. अगर मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है और मैं कंपनी बंद करके जा रही हूँ, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट ऑन लिक्विडेशन इज नथिंग बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डीम्ड डिविडेंड, टैक्स्ड एट 23% इफेक्टिव रेट DDT इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, नॉट इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. ओके, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब बाईबैक कर रहे हैं, और एनी फॉर्म ऑफ रिडक्शन, आई हैव टू पे मनी टू द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को पैसा कहाँ से देंगे, प्रॉफिट से, तो ही तो तुम अपनी लाइबिलिटी, तो ही तुम अपना शेयर हाँ मुझे दे दोगे जो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी. बाईबैक अगर करना है, बाईबैक इज नथिंग बट अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. सो आई विल टेल यू, आई एम द कंपनी, आई गो एंड टेल द शेयर होल्डर, एक काम करो, मुझे तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट दे दो, ओके, एंड यू विल गिव मी, and I will have to give you money for that. This money that I give you is nothing but profits, distribution of profits. It will be taxed as a dividend, deemed dividend. Another one which is very peculiar is loan or advance given to a substantial shareholder by a private company. So if I give you a loan, let's say you and I, we are a company, we both run a company. कंपनी में प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट देना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा DDT. वो बोल रहे वो सब जाने दो, लेट्स एंजॉय द प्रॉफिट्स बाय टेकिंग अ लोन. सो यू एंड आई आर क्लोजली हेल्ड, प्राइवेट कंपनी, और हमने ये लोन ले लिया. वो बोल रहे देखो बॉस, कंपनी तुम्हारी है, छोटी सी कंपनी है, होल्डिंग 20% और मोर स्टेक इन द कंपनी. इन दैट केस द मनी दैट यू टेक इन एज अ लोन is going to be taxed in the hands of the shareholder, in yours and my hands, as it is taxed in the hands of the shareholders, okay, and not in the hands of the company. यहाँ क्या था, DDT कंपनी पे करी. ओनली इन केस ऑफ लोन, जब लोन मिलता है मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी टर्म्ड एज अ डिविडेंड. नाउ ऑल ऑफ दिस, वहाँ देखो एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट होना चाहिए, ओके, बिकॉज वो प्रॉफिट्स को एक डिस्ट्रीब्यूट करने का मैकेनिज्म है ये. दिस विल ऑल बी टर्म्ड एज अ डिविडेंड, एंड डिविडेंड अगर है तो all cases में company will pay DDT. In the case of a loan, it is taxed in the hands of the shareholders. Earlier it was 10%, now it has been increased to 30% tax. Okay. Ma'am, this 30% is when you... So this is 115 BD. Indian company has substantial shares, more than 26% shares of a foreign company. और ये फॉरेन कंपनी क्या करती है, डिविडेंड कंपनी देती है अपने इंडियन कंपनी को. सो लेट्स से यू हैव शेयर्स ऑफ अमेजॉन और टेस्ला or any of the foreign companies, and you have substantial shares, at least 26% shares in the company. Now that company which is in a foreign country has given dividend, okay, तो ये जो डिविडेंड तुमको मिलेगा वो टैक्स हो जाएगा, and it will be taxed at the rate of 15%.
it will be taxed at the rate of 15%. Okay, now this was everything in relation to dividend. To our the next type of income we are seeing is winning income. कोई भी अगर तुमने winning income, if you have earned a jackpot, lottery, anything, that entire income is going to be taxed and you're not going to get any deductions. You can't say PF में डाल दिया. Full amount is going to be taxed. How much amount? 30% flat rate पे tax हो जाएगा. Okay, above 10,000 पे TDS भी डिडक्ट हो जाएगा. ओके तुमको टैक्स तो भरना है लेकिन TDS भी डिडक्ट हो जाएगा. कितना? 30% TDS डिडक्ट हो जाएगा. ओके नाउ सो डिविडेंड इनकम वी सॉ. नेक्स्ट वी आर सीइंग विनिंग इनकम. एंटायर विनिंग इनकम इज गोइंग टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%. अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 115BB. 115BB पे वो पूरा अमाउंट टैक्स हो जाएगा. अच्छा नेक्स्ट देखो रेंट इनकम. रेंट इनकम दे आर सेइंग इफ इट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी. व्हाई नॉट हाउस प्रॉपर्टी? बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी के लिए पूरा तुमको चैप्टर सिखाया मैंने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अलग दूसरा भी हो सकता है ना, इनकम अदर एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, या जस्ट अ प्लॉट ऑफ लैंड. वाई? बिकॉज प्लॉट ऑफ लैंड पे घर नहीं है, घर नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा. वो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. एनी इनकम वेयर यू आर नॉट द ओनर. ओके सो इफ द हाउस इज इन द नेम ऑफ माई लैंडलॉर्ड and the landlord has given it to me and I then further sublet it, that case this income that I receive, though it is a rent income, it will be taxed as income from other sources. Any composite rent, ये composite rent सुनो क्या है. now अगर घर है तो घर का रेंट क्या हो जाएगा? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बट इसके अलावा आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज. ओके आई एम प्रोवाइडिंग प्लस अदर सर्विसेज. जो सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं तुमको अलग एमिनिटीज दी है, पूरा फर्नीचर भी दे दिया है साथ में. ओके तुमको यहाँ मेड्स है, कुक्स है, वॉचमैन है, गार्डनर है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. एंड फॉर एवरीथिंग आई एम चार्जिंग यू 1 lakh. Now this 1 lakh is not for the house, it is house plus other services, so it is nothing but a composite rent. In that case this whole 1 lakh will be taxed as income from other sources. Now अगर this rent is divisible, if I can tell you, देखो अगर तुमको घर चाहिए सिर्फ तो उसके लिए रेंट इज 60,000, अदर सर्विस है तो 40,000 का एक्स्ट्रा तुमको पेमेंट करना पड़ेगा. In that case this income will be income from house property and this income will be income from other sources. However if it is not divisible and it is a composite rent, what is composite rent? Inseparable, not divisible. that whole amount जो घर का भी होगा अदर का भी होगा, पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर. ओके now let's go to the next one, agri income. Sweetheart, agri income always exempt under section 10(1). okay but in India agri तुमको in India में करना है. अब जाके तुम नेपाल, पाकिस्तान, भूटान में एग्रीकल्चर करोगे तो यहाँ तुमको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. एग्रीकल्चर शुड बी डन in India. If it is done outside India पूरा का पूरा taxable हो जाएगा. okay next is the income that MLAs, ministers earn. now your prime minister is earning money, your chief minister is earning money, deputy ministers are earning money, तो वो सब क्या है? you cannot say it is salary income because there should be employer employee relationship. who is the employer of the chief minister? you, me? no, we say that there is no, they are not employees, they are holding a position and वो position के लिए जो पैसा मिल रहा है हम उसको बोलेंगे honorarium. तुम उसको लेमैन लैंग्वेज में सैलरी बोल सकते हो, बट सैलरी हमने क्या देखा सेक्शन 16 में चार्जिंग सेक्शन. ओके सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. जब वो रिलेशनशिप ही नहीं है तो सैलरी नहीं बोल सकते एज पर इनकम टैक्स, तो हम उसको बोलते हैं ऑनरेरियम. ऑनरेरियम पूरा का पूरा टैक्सेबल है बट उनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ड्राइवर अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ओके फूड अलाउंस,
देन सर्वेंट अलाउंस, ऑल दीज हेल्पर अलाउंस, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1017. 17 खतरा मिनिस्टर्स, ओके, वो सब याद रखो, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है. Then income of a minor child and a dependent minor child. You say, but ma'am, dependent ही होते हैं minor child. No, sometimes over excited minor children who are independent. 16-17 साल में they are earning money, they have businesses, they have made an app. Okay, so in that case, this section will not be applicable. If there is an income of a minor child, then that income will be taxed in your hands. Okay, in the hands of the assessee. उसके साथ में माइनर चाइल्ड का इनकम ऐड हो जाएगा. ओके, और उसको एक एग्जेम्पशन मिलेगा 1500 रुपये का. ओके, सो माइनर चाइल्ड अगर 10,000 कमा रहा है, 1500 का एग्जेम्पशन उसको मिलेगा असेसी को, तो उसको 8,500 टैक्सेबल हो जाएगा. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, इट इज अ डिपेंडेंट माइनर चाइल्ड. इंडिपेंडेंट माइनर चाइल्ड हुआ तो कुछ नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, कमा सकता है तो टैक्स भी भर सकता है. ओके, नाउ इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई. हाउ वी सॉ इनकम ऑफ डिविडेंड इनकम is dividend income is exempt under section 1034. UTI income or mutual fund income is also exempt under section 1035. Then any other non employer से कुछ भी पैसा मिल रहा है वो पूरा का पूरा exempt है. Like for example sitting fees of directors. Directors meeting attend करने की fees लेता है and that is exempt. Then next one is family pension. फैमिली पेंशन क्या होता है, अगर पेंशन हमने देखा इनकम फ्रॉम सैलरी में किसको मिलता है, असेसी को. जब वो जॉब छोड़ देता है उसको पेंशन मिलता है. अब हो सकता है ओके द एम्प्लॉई इज नो मोर, तो उसके डिपेंडेंट वाइफ को, उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को वो पेंशन मिलता है ओके आफ्टर हिज डेथ. सो दैट let's say the wife is getting the pension, the wife doesn't become the employee और उसके हाथ में इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगा, उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा. ओके, जब वाइफ को पेंशन मिलता है अपने डिसीज्ड हस्बैंड का, वो टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, और उसको वेरी स्वीटली डिडक्शन भी मिलेगा. ओके, उसको थोड़ा अमाउंट डिडक्शन मिल जाएगा 15,000 और 1/3 ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लेस. नेक्स्ट वन इज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, दैट इज रिसीव बाय द फैमिली मेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय. अब देखो, तुमने एम्प्लॉय का अगर तुमने यू हैव टेकन एन इंश्योरेंस, सो नाउ इफ द मनी इज रिसीव बाय द एम्प्लॉयर तो वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. अगर एम्प्लॉयज को मिल रहा है ओके तो हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी. बट व्हाट इफ अ फैमिली मेंबर इज गेटिंग द मनी, इट विल बी इनकम फ्रॉम other sources, it will be income from other sources. Interest on enhanced compensation. तुम्हारा घर अक्वायर कर लिया कंपल्सरी, तुम कोर्ट में गए, कोर्ट ने तुमको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, वो हो गया इनहैंस कॉम्पेंसेशन. हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इनहैंस कॉम्पेंसेशन. वो इंटरेस्ट पे तुमको that income on interest income is going to be taxed as income from other sources, but you will get a deduction of 50% of the amount is allowed as a deduction, and interest income will be taxed as income from other sources. So let's say उसको enhanced income मिला, enhanced interest, okay, let's say 100 rupees मिला, 50 exempt हो जाएगा, सिर्फ 50 taxable होगा. Okay, now let's go to any interest income is taxable under income from other sources, any interest. However, under section 1015 they have noted down few interest incomes जिसके ऊपर टैक्स नहीं है. वो अब ये सब क्या होंगे, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होंगे. अगर तुम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा डाल रहे हो तो जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं है. तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये सब नेशनल डिफेंस बॉन्ड, नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट. ओके, देन ट्रेजरी सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ किया है हमने, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन बॉन्ड्स, रिलीफ बॉन्ड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स. तो ये सारे स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के ही बॉन्ड्स रहते हैं. तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा डालोगे वो इंटरेस्ट जो तुमको देंगे वो बॉन्ड्स के ऊपर वो एग्जेम्प्ट है. सिंपल.
ओके, नेक्स्ट इज रॉयल्टी इनकम. रॉयल्टी अगर कोई कमा रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अनलेस यू आर अ राइटर है तो उसका काम ही लिखना है, तो वो उसके लिए हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. फेयर. ना आई एम अ लॉयर, आई एम ऑल्सो राइटिंग, दैट केस आई विल बी टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, द रॉयल्टी इनकम. एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर. नॉन एम्प्लॉयर मतलब मेरा एक एम्प्लॉयर है लेकिन मैं साइड बाय साइड कुछ और भी काम कर रही हूँ. ओके, कंसल्टेंसी का काम कर रही हूँ, तो वो मुझे पैसा दे रहा है, वो क्या हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट स्वीटेस्ट नाइसेस्ट इज गिफ्ट. कोई ने भी तुमको गिफ्ट दिया ना, टैक्सेबल हो जाएगा. एनी गिफ्ट दैट यू रिसीव इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. बट they have divided the gifts into 3 types of gifts: money, cash, movable property. And property means what? Any capital asset. हमने देखा ना कैपिटल एसेट, तो पर्सनल एसेट्स नहीं लेने का, योर ज्वेलरी, वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, एंटीक, बुलियंस एक्सेट्रा, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, ये 3 क्या हो जाएंगे तुम्हारे इनकम फ्रॉम, दिस विल बी योर गिफ्ट इनकम. नाउ दे आर सेइंग अगर तुमको 50,000 तक कैश मिला है, 50,000 तक कैश मिला है तो एग्जेम्प्ट है. अगर 50,000 से 1 रुपया ज़्यादा मिला, सो इफ यू हैव रिसीव 50,001 रुपी, द फुल अमाउंट विल बिकम टैक्सेबल. इट इज जस्ट नॉट 1 रुपी दैट विल बिकम टैक्सेबल, फुल अमाउंट विल बिकम टैक्सेबल. याद है हमने गिफ्ट किया था इन आर सैलरी इनकम. अगर तुमको 5,000 तक एग्जेम्प्ट है, 5,000 से तुमको ज़्यादा मिला, लेट्स से 10,000 रुपया मिला, वो पूरा 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा. सेम फंडा इधर है, बट यहाँ 50,000 का लिमिट है. ओके, एंड दिस कुड बी फ्रॉम एनी वन, फ्रॉम योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ what about here? For movable property, they are saying again aggregate total movable properties you should have received of 50,000 से ज़्यादा in the year, then it will be taxable. 50,000 से कम मिला तो no tax. अगर land and building है, so you have to, and हाँ एक मिनट, when you go for work of art, painting, how will you find the value? You will say अरे कोई नहीं, fair market value of each of the properties. Okay, fair market value 50,000 से ज़्यादा, all the properties together, then the entire movable properties will become taxable. In case of immovable property, they are saying stamp duty value of individual asset, individual land and building. तो तुम एक तुम्हारे पास 5 प्रॉपर्टी तुमको गिफ्ट मिली है, क्या बात है, 5 प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट मिली है, so you will take each of the property if the value is 50,000 and more. अब तुमको इससे कम तो कोई मिलेगा भी नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 से कम क्या ही होगा, तो तुमको हर एक का अलग अलग देखना पड़ेगा. 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है या तो फिर नहीं. यहाँ एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हाउ इट वॉज देयर इन कैश एंड मूवेबल. ओके, हाउएवर दे आर सेइंग अगर तुमको पैसा मिला है, आई एम डॉक्टर हटलो, ओके, देन कोई बात नहीं. अगर तुमको यहाँ से आई एम डॉक्टर हटलो से गिफ्ट मिल रहा है, चाहे कितना भी हो, 50,000 हो, 50,000 से ऊपर हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, कोई भी, इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ गिफ्ट, हेंस इट इज़ नॉट एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इट वोंट बी टैक्स्ड. अगर आई एम डॉक्टर हटलो से कितने भी अमाउंट का कुछ भी गिफ्ट मिल रहा है, मूवेबल, इमूवेबल, कैश और वॉट एवर अमाउंट, इट विल नॉट बी टैक्स बिकॉज इट इज़ नॉट एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इट इज़ नॉट अ गिफ्ट. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? इनहेरिटेंस. मम्मी तुमको गिफ्ट दे रही है, डैडी गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट है ही नहीं, पहली बात, इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी. M is any money that you receive on the occasion of marriage. मैरिज के दिन पे जितना कैश मिल रहा है ले लो, जितने तुमको गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स मिल रहे हैं ले लो, कोई टैक्स नहीं है. डेथ कॉम्पेंसेशन. डेथ कॉम्पेंसेशन इज जब इंसान मर जाता है. व्हेन आई से मनी रिसीव बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और विल, तो मुझे आज पैसा मिल गया, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई रिसीव ज्वेलरी,
Okay, when I receive the jewelry from my father, it is not going to be taxed in my hands. It is not a gift. When I sell the jewelry, I will sell it at a profit. तो मैंने अगर मेरे लिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो है, बट माई फादर मस्ट हैव परचेज इट फॉर 10 lakhs. Okay, the jewelry purchased for 10 lakhs, when I sell it, I sold it for 15 lakhs. You're going to get a gain. That gain is going to be taxed as income from capital gains. We are not on the selling of that. We are, when is capital gains कब लगता है? जब तुम ट्रांसफर कर रहे हो एसेट. हम ट्रांसफर की बात कर ही नहीं रहे, हम तो अभी रिसीव कर रहे हैं, गिफ्ट मिल रहा है. तो जब मिल रहा है, हम यहाँ कर रहे हैं कि तुमको इनहेरिटेंस से मिला, वो गिफ्ट ही नहीं है. ओके, तो टैक्स का सवाल ही है. मैरिज भी पे मिला, कोई टैक्स नहीं है. डेथ कॉम्पेंसेशन, तो सोल्जर्स मर जाते हैं ना, तो उनकी फैमिलीज को पैसा मिलता है. ओके, दे समटाइम गेट पेट्रोल पंप एक्सेट्रा. So in that case, that amount is not going to be taxed. Death compensation. Any money that you receive from your relative. Now relative is your, it's very wide, your spouse. Okay, lineal ascendants, lineal descendants. Your parents. Okay, parents के brother sisters. Your siblings. Okay, उनके पास से कुछ भी पैसा मिला, वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. Okay, चाहे मैरिज पे मिला है या on your birthday you have got it, it won't be taxed. Okay, next is any hospital, university or any trust. Hospital, university, trust, charitable trust तुमको पैसा देती है, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर. ओके, एंड एनी मनी रिसीव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, तुमको म्यूनसिपैलिटी पैसा देके जाती है, कोई टैक्स नहीं. ओके, Ma'am, हाँ. if we have bought the gold like during the marriage, so we can show it also and we can get the tax exemption also. उस इट इज़ नॉट अ टैक्स, तो एग्जेम्पशन से सवाल ही नहीं. जब इट इज़ नॉट टैक्सेबल तो एग्जेम्पशन का सवाल नहीं. अब तुम जब बेचोगे गोल्ड, ओके, तो तुमको मैरिज के दिन पे तुमको 10 लाख का गोल्ड मिला है. ओके, 10 लाख, हाउ डू यू नो इट इज 10 lakhs? योर फादर बॉट इट. ओके, नाउ यू आर सेलिंग इट फॉर 15 lakhs. दैट 5 lakhs विल बी टैक्स्ड. ओके, एंड हाउ डू यू फाइंड? तुम कैपिटल गेन्स में हमने सीखा है वैसे करोगे. सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट तुम्हारे लिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो है. यू विल टेक टू द प्रीवियस ओनर, दैट इज योर फादर. ओके, ओके. So we saw any expenses that is incurred when you are having in any of the incomes under section 56. वो उसके ऊपर तुमने अगर खर्चा किया है टू अर्न द इनकम, वो तुमको डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 मिल जाएगा. देर आर सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिडक्शंस. एक तो है फैमिली पेंशन. ओके, सो इफ यू हैव इवन इनकर्ड लेस मोर डजंट मैटर, दीज आर फ्लैट डिडक्शंस. Okay, that is how we saw enhanced compensation, interest on enhanced compensation, flat deduction. Okay, then minor child, उस पे कितना है? 1500 रुपया, फ्लैट डिडक्शन. ओके, सो एक बार ये देख लेंगे. विनिंग इनकम्स 30%. Ma'am, हाँ, the notes are sent on the group now. It's ना एक बार ये देख लेते हैं. विनिंग इनकम्स वी सॉ 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स. तो जो तुमको केबीसी में चेक दिखाते हैं ना, वो सब झूठ है. 1 करोड़ रुपया अगर तुम जीतोगे भी, तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ नहीं हिट होता है. 30% डिडक्ट तो करना कंपलसरी है, प्लस सरचार्ज प्लस सेस, वो अलग है. ओके, इंटरेस्ट ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल एक्सेप्ट इफ दे आर गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफिस बॉन्ड्स एक्सेट्रा, हमने देखा है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1015. एनहांस कॉम्पेंसेशन है इंटरेस्ट, तो 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 50% टैक्सेबल हो जाएगा. हाँ, अच्छा, अवार्ड. इफ यू हैव रिसीव्ड एनी अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017A. 1017A में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एनी अवार्ड. देन फैमिली पेंशन भी सो. हाँ, now this is important, pay attention, this is important. Now we are talking about a scenario where shares are issued at a price in excess of the fair market value and the face value. So now I as a company am issuing shares, and when I'm issuing shares, okay, let's say I'm issuing shares to you.
सो 10 रुपये का शेयर है फेस वैल्यू, ओके, रिलायंस का 10 रुपये का शेयर है, खरीदो 10 रुपये में, मिलता है क्या? नहीं मिलेगा. यू विल गेट इट एटलीस्ट, अभी मार्केट रेट 1900 रुपये चल रहा है, 1900. So that is the fair market value is what? 1900. What is the face value of Reliance? 10 rupees. Now the company is doing an issue, okay, and when it does an issue to you as a shareholder, you are an FII, you are an sophisticated investor, तुमको 2000 में दे रहे हैं. शेयर कितने में दे रहा है? एक शेयर 2000 में. तो what the income tax authority saying, देखो भाई, शेयर का वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो 1900 रुपया है, तुमने 2000 में इशू किया, तो जो एक्स्ट्रा 100 रुपया कमा रहे हो ना, वो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. एनीथिंग ओवर एंड अबव योर मार्केट वैल्यू, ओके, इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. बट यहाँ रूल क्या है? इट शुड ऑल्सो बी अबाउ द फेस वैल्यू, जो नॉर्मली होता ही है, ओके. बट समटाइम्स इन योर ऑब्जेक्टिव दे विल गिव यू फेस वैल्यू लेस देन द इशू प्राइस. दैट मीन्स फेस वैल्यू तुम्हारा, सॉरी, फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस इज 9 रुपीज. फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया. तुमने इशू किया डिस्काउंट पे. अब डिस्काउंट है तो इट इज कैनॉट बी एन इनकम ना. द वर्ड इट सेल्फ इज अ डिस्काउंट. इफ इट इज अ डिस्काउंट, देर इज, इट इज नॉट एन इनकम, इट वोंट बी टैक्स्ड. Okay, when it will be taxed? When you are earning more than the market value, when you are issuing more than the market value. But if you are issuing less than the face value, it is a discount. So let's take an example. My face value is 100, the market value is 90 rupees, I issued it at 95. face value कितना है? 100. तुमने 95 पे इशू किया, तो ये क्या हो गया? It is a discount. Hence it won't be taxable. Another example, face value 100 है, मार्केट वैल्यू 110 है, मैंने कितने पे किया? 120 पे. मार्केट वैल्यू कितना? 110. तो मुझे कम से कम 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ. वो बोल रहे हैं ये जो 10 रुपया कमाया, ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नेक्स्ट वाला देखो, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 90 है, ओके. I issued it at 110. You will not take 10 रुपीज़ का डिफरेंस है, तुम यहाँ 90 का डिफरेंस लोगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू 90 है. तुमने 110 में किया ना, तो तुमको प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 का. टेक दिस एग्जाम्पल, फेस वैल्यू इज 100, मार्केट वैल्यू इज 110, you issued it at 90. That means, can I say, you will, for discount or premium, discount is what? When you issue less than face value, okay. What is premium? When you issue more than face value. We are on this. Whenever it is on a discount, face value कितना है? 100. तुमने अगर 90 पे किया, देखो यहाँ तुमने 95 पे किया, दोनों केसेस में टैक्सेबल है ही नहीं, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डिस्काउंट. गॉट इट? दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये सब हमने देखा. एग्री इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन का इंश्योरेंस लेना. बट हु विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द इंश्योरेंस? इफ द बेनिफिशियरी इज एम्प्लॉयर, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. बेनिफिशियरी इज द एम्प्लॉयज, इनकम फ्रॉम सैलरी. द बेनिफिशियरी इज द फैमिली, देन इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, गिफ्ट्स हमने देखा. ये पूरा शॉर्ट में गिफ्ट्स वापस देखो. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ओके. So 50,000. If it exceeds 50,000, full amount is taxable. यहाँ you will take aggregate value, and when I say aggregate value, fair market value exceeds 50,000, entire amount taxable. यहाँ क्या लोगे? Stamp duty value for land and building transactions. The individual value of each property should exceed 50,000. 50,000 what? 50,000 of the stamp duty. ओके. नाउ ये तो है, लेकिन अगर तुमको यही चीज आई एम डॉक्टर हटलो से मिला है, नो गिफ्ट हेंस नॉट टैक्सेबल. क्या है वो? इनहेरिटिंग, मैरिज, डेट कॉम्पेंसेशन, रिलेटिव्स, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? यहाँ देखा, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट, ज्वेलरी,
okay, then your paintings, archaeological excavations etc. What is relative? यहाँ देखो relatives के पास से कुछ भी मिला कोई टैक्स नहीं है ना. अब relative किसको बोलते हैं? So let's say this is this person, husband is the assessee. Assessee उसका spouse, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, सब. ओके, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर्स, असेसी के ब्रदर सिस्टर्स. ओके, यहाँ रियल ब्रदर्स है, कजिन ब्रदर और ये सब नहीं है, ब्रदर सिस्टर्स. स्पाउस के ब्रदर सिस्टर्स और लीनियल डिसेंडेंट्स. लीनियल डिसेंड मतलब बच्चे, बच्चों के बच्चे एक्सेट्रा. तो उनके दे ऑल आर कंसिडर्ड एज रिलेटिव्स. इन लोगों के पास से तुमको अगर कुछ भी मिला है, सो इट इज नॉट अ गिफ्ट, हेंस नॉट टैक्सेबल. ओके, हाँ. नाउ सेक्शन 58 इज सेइंग दैट देखो तुम लोग एक्सपेंसेस 57 के अंदर डिडक्शन ले लो, लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस डिडक्शन नहीं ले सकते हो. यू कांट टेक एनी पर्सनल एक्सपेंसेस. ऑब्वियसली यू विल नॉट टेक पर्सनल एक्सपेंसेस. घर का दाल चावल का राशन यहाँ नहीं ले सकते. और अगर तुमने TDS नहीं डिडक्ट किया है, ओके, और अगर NR को पेमेंट कर रहे हो, TDS नहीं डिडक्ट किया है, तो तुमको यू विल नॉट गेट अ डिडक्शन. तो ये ऑलरेडी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में हम लोग ने देख लिया है. नेक्स्ट इज डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड बोनस स्ट्रिपिंग. पे अटेंशन, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ये सेक्शन 94 का. ओके, ये क्या बोल रहे हैं? एनी यूनिट सिक्योरिटी परचेज विद इन 3 months फ्रॉम रिकॉर्ड डेट. नाउ व्हाट इज रिकॉर्ड डेट? सो वेन एवर दे गिव अ डिविडेंड, दे आर सेइंग ऑल द पीपल who are shareholders on the record date. So record date is a date that is fixed by the company, that whoever's name is there in the register of members as a share, as a member, उनको सब हम डिसाइड करेंगे डिविडेंड देने के लिए. तो लेट्स से फॉर माई एग्जाम्पल 1/4/2020 इज द रिकॉर्ड डेट द कंपनी डिसाइड्स. तो उसके 3 महीने पहले कितना हो जाएगा? मार्च, फेब एंड जैन. तो 1 जनवरी को, उसके पहले बिटवीन 1 जनवरी एंड 1 अप्रैल, 3 months का टाइम हो गया. इफ यू हैव परचेज्ड एंड नॉट उसके पहले, बिटवीन 1 जनवरी 2020 एंड 1 अप्रैल, दैट मीन्स विद इन 3 months ऑफ द रिकॉर्ड डेट. नाउ व्हाई दे आर सेइंग विद इन 3 months? देखो, जब कंपनी डिविडेंड देती है ना, उसके थोड़े 1 क्वार्टर पहले ही या 2-3 महीने पहले पता चल जाता है कंपनी प्रॉफिट कर रही है, डिविडेंड देने वाली है. तो तुमने वो रूमर के हिसाब से तुमने वो शेयर खरीद लिया. अब रिकॉर्ड डेट 1/4 को कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, दैट मीन्स यू रिसीव डिविडेंड. एज सुन एज यू रिसीव डिविडेंड, विद इन 3 months यू सेल द शेयर्स. क्या बात है? एंड यू सेल द शेयर्स विद इन 3 months फ्रॉम रिकॉर्ड डेट. दे आर सेइंग देखो बॉस, अब अगर let's say I purchased, my cost price of the share is 100 rupees. okay, अब मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ 20 रुपये का. मैं आई एम हैप्पी, 100 रुपये डाला, 20 रुपये डिविडेंड मिल गया. अब कंपनी का शेयर प्राइस है ना गिर जाता है. जब भी कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है. तो मैंने क्या किया, कंपनी का अप्रैल में डिविडेंड मुझे मिल गया, जुलाई तक टाइम है मेरे पास. मैंने 1 जुलाई के पहले पहले मैंने शेयर बेच दिया, तो मैंने 1 जुलाई को बेच दिया. अब 1 जुलाई पे सेलिंग प्राइस इज 85 रुपीज. ओके, नाउ आई विल से दैट इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, विद इन 1 ईयर का टाइम है. तो आई विल से देखो बॉस, मुझे लॉस हो गया है. लॉस कितने का हुआ? 15 का. हाउ? 100 माइनस 85. ओके, आई शो अ लॉस ऑफ 15. दे आर सेइंग नहीं बॉस, हम तुमको 15 का लॉस मानेंगे ही नहीं. इन दिस केस यू हैव अर्न्ड द डिविडेंड ऑफ 20. 15 का तुम्हारा ये अमाउंट है लॉस, तो तुम्हारा 5 का तो प्रॉफिट है. ओके, सो इन दिस केस यू विल नॉट, यू कैनॉट क्लेम अ लॉस. You cannot claim a loss. You will subtract the dividend amount from the actual amount, and if there is a negative amount you can claim a loss. Let's take another example. ये वैल्यू है ना, मैंने 75 में बेच दिया. ओके, अगर मैंने ये 75 में बेच दिया
say 75 is my selling price, 100 is the cost price. Selling price minus cost price, मुझे लॉस कितने का हुआ? 25 का लॉस हो गया. ओके 25 का लॉस हो गया. दे आर सेइंग देखो बॉस, ये जो 25 का लॉस है ना, तुमको 25 का एक्चुअल लॉस नहीं है, डिविडेंड तो 20 मिला है ना, सो योर एक्चुअल लॉस इज ओनली 5. वी विल अलाउ यू अ डिडक्शन ऑफ ओनली 5. देखो इधर, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इन डिविडेंड स्ट्रिपिंग. ओके, दिस इज नॉट टेक्निकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक नया कॉन्सेप्ट है, आई एम जस्ट टीचिंग यू. अगर तुमको कैपिटल गेन्स में तुमको 25 करने मिलेगा ही नहीं, दे विल से डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट वी विल डू फॉर बोनस स्ट्रिपिंग. क्या करेंगे? यूनिट्स परचेज्ड और सिक्योरिटी परचेज 3 months फ्रॉम रिकॉर्ड डेट एंड सेल्स इट विद इन 3 months फ्रॉम रिकॉर्ड डेट. इफ इट इज यूनिट्स इट इज 9 months फ्रॉम रिकॉर्ड डेट. ओके, बिकॉज यूनिट्स बेचने को टाइम लगता है. They are saying the actual loss will be dividend minus the loss on the sale. देखो डिविडेंड मुझे 20 का हुआ, लॉस ऑन द सेल 25, दिस इज द एक्चुअल लॉस. ओके, सेम कॉन्सेप्ट दे आर सेइंग फॉर बोनस स्ट्रिपिंग. मुझे पता है कंपनी बोनस देने वाली है, सो व्हाट आई डू, फ्रॉम द डेट सिक्योरिटीज परचेज विद इन 3 months फ्रॉम रिकॉर्ड डेट एंड आई सेल इट विद इन 9 months फ्रॉम रिकॉर्ड डेट. दे आर सेइंग द एक्चुअल लॉस विल बी द बोनस अमाउंट जो तुमको मिला है, बोनस अमाउंट और वैल्यू ऑफ बोनस. तो मुझे अगर एक शेयर 100 रुपये का मिला है तो मुझे वो बोनस अमाउंट हो गया, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज विल बी द एक्चुअल लॉस. सेम टू सेम थिंग यू हैव टू डू ओवर हियर. ओके, विथ दिस वी कंप्लीट योर एंटायर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज.